تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا وسیلے کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ سکھایا ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد وسیلہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اس وقت بھی وسیلہ تھا، اور اب بھی ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ لے سکتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت تو وسیلہ آپ کا جائز تھا، لیکن اب جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، وہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا، صحابی تھا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میں تمہاری دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں، یعنی تم ایسے ہی رہو، صبر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ ابن ماجہ صحیح حدیث 1385۔ انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم شفیع فی۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا باری تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مخاطب کر کے اے محمد، یعنی یہ دعا سکھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد، اے محمد، میں اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لے۔ تو وہ صحابی گئے، جا کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی دور کر دی۔ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا منگوائی ہے۔ اب موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک ٹھیک تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں۔ طبرانی میں حدیث ہے 8311، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، جو یہاں راوی ہیں صحابی عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا، اسے موقع نہیں ملتا تھا بات کرنے کا، اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا یہ میری پریشانی ہے، آپ سفارش کر لیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ جا کے وضو کریں، وضو کر کے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو سکھائی ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، دعا مانگی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان کا کام ہو گیا۔ وہ آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے میری سفارش کی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف جو راوی ہیں صحابیوں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی سفارش نہیں کی، یہ دعا جو میں نے آپ کو سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو سکھائی تھی، انہوں نے پڑھی تھی، ان کا کام ہو گیا تھا، ان کی بینائی لوٹ آئی تھی، تو اس لیے وہ جو دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے۔ اب وہ یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے ہم اس سے استدلال نہیں لے سکتے۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے مدلس، وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن وہب مدلس ہے، اور مدلس جب ان سے روایت کرے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی جب تک کہ سماع کی تصریح موجود نہ ہو، یعنی مدلس جو راوی وہ آگے کہے اخبرنی، سمعت،
हद्दसनी, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करे फिर तो वो हदीस मानी जाएगी, अगर ये इस्तेमाल अल्फाज नहीं करता तो हदीस नहीं मानी जाएगी। मुदल्लिस क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊं थोड़ी सी, ताकि आपको मालूम हो। तदलीस कहते हैं सामान के ऐब को ख़रीदार से पोशीदा रखना, ठीक है। और चूँकि मुदल्लिस जो तदलीस करने वाला होता है हदीस पर वाकिफ़ियत और ख़बर रखने वाले से अपने मामले को तारीख रखता है, और तदलीस का लुग़वी माना है अंधेरा या अंधेरे का खलत मलत होना। तो मुदल्लिस इसकी तारीफ़ क्या है? रावी हदीस जो हदीस की रिवायत कर रहा है उस उस्ताद से बयान करे जिससे उसने ये हदीस सुनी नहीं है, यानी अपने दादा उस्ताद से कि उससे वो ये हदीस सुनी नहीं है, उसको जिक्र किए बगैर जिससे उसने ये हदीस सुनी है, यानी अपने उस्ताद से सुनी है और लेकिन अपने उस्ताद का नाम नहीं ले रहा बल्कि दादा उस्ताद का नाम ले रहा, जिससे कभी ये मिलता भी रहा है, उससे कभी ये हदीसें सुनता भी रहा लेकिन ये हदीस उससे नहीं सुनी। इस तारीफ़ की वजाहत ये है, डॉक्टर महमूद तहान की किताब से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इस तारीफ़ के माना यह है कि तदलीस इसनाद ये है कि रावी अपने उस शेख से हदीस बयान करे जिससे उसने बाज़ अहादीस सुनी है, लेकिन ये हदीस जिसमें तदलीस कर रहा है उसने इस शेख से नहीं सुना, बल्कि ये हदीस उसने किसी और उस्ताद से सुनी है, लेकिन इस उस्ताद को हज़फ कर देता है और ऐसे लफ्ज़ से बयान करता है जिसमें सिमा वगैरह का एहतमाल हो, मसलन काल और अन। तो ये है कि वो अपने दादा उस्ताद का नाम लेता है, अपने जो उस्ताद है उसका नाम नहीं लेता, अपनी सनद को कवी करने के लिए अन इस्तेमाल करता है, काल इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर वहीं हद्दसनी आ जाए, अखबरनी आ जाए तो ये इसको कहते हैं समा की तसरी। अब देखें एक वहाबी मौलाना साहब हैं, वो इसकी क्या तारीफ बयान कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल बात क्या है। मुदल्लिस किसको कहते हैं? ऐसे रावी को कहते हैं जो बीच में से एक रावी छोड़ के किसी ऐसे से रिवायत लेता है जिससे वो मिला है लेकिन रिवायत नहीं की है, या रिवायत ली है तो ये रिवायत वो ली भी नहीं है डायरेक्टली, तो ऐसे रावी को क्या कहते हैं? मुदल्लिस। तो ऐसा रावी, उसकी ऐसी रिवायत जो अन से हो ये मुनक़ते मानी जाती है, बीच में एक गायब है कोई तो भी। लेकिन मोतबर रावी अगर मुदल्लिस हो तो जब तक कि वो हद्दथना, समिअतु, अखबरना, अखबरनी, हद्दथनी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करे, क़ाल अली इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल न करे वो हदीस नहीं ली जाती है, वो मुनक़ते हैं। जी दोस्तों, आपने सुना कि मोतबर रावी है और तदलीस करता है, अन से रिवायत करे तो वो हदीस मुनक़ते होगी, लेकिन अगर वही मोतबर रावी हद्दसनी, अखबरनी और समेतो का ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो हदीस मानी जाएगी। अब आइए उस हदीस की तरफ जिसको मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि इसमें अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो मुदल्लिस से अन से रिवायत करते हैं, समा की तसरीह मौजूद नहीं, इसलिए यह हदीस मुनक़ते और ज़ईफ़ है। देखें ये हदीस है तबरानी शरीफ की, आपके सामने 8311 नंबर। हद्दसना ताहिर इब्न ईसा इब्न क़ैरस अल मिस्री अल मुकरी, हद्दसना असबग़ इब्न फ़र्ज, हद्दसना इब्न वहब अन अबी सईद अल मक्की। अब ये है हद्दसना इब्न वहब, इब्न वहबी अब्दुल्ला बिन वहब अन अबी सईद, अबू सईद से रिवायत करते हैं। इसके बारे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन वहबी मुदल्लिस है, अन से रिवायत करता है, समा की तसरीह मौजूद नहीं, इसलिए ये हदीस मुनक़ते है और इससे ये हदीस ज़ईफ़ होगी। अब यहाँ अगर ये लफ्ज़ आ जाए, यानी इस कानून से कि मुदल्लिस अन से रिवायत करता है, समा की तसरीह मौजूद नहीं, समा की तसरीह क्या होती कि अगर होता ना इब्न वहब हद्दसनी, उसने कहा कि मुझे ख़बर दी अबी सईद ने, ठीक है, या अखबरनी मुझे ख़बर दी अबू सईद ने, अगर इस तरह के अल्फाज आते तो ये होती है समा की तसरीह। अब मैं आपको बताता हूँ कि और किताब है जिसमें समा की तसरीह मौजूद है। अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को नहीं मालूम तो ये कम इल्मी है, ये जहालत है, और जहालत फैलाता कैसे है। अब देखें इस हदीस को दोबारा देखें। हद्दसना इब्न वहब, अब्दुल्ला बिन वहब रिवायत करते हैं अन अबी सईद, अब्दुल्ला बिन वहब अन अबी सईद के अबू सईद से अन से रिवायत करते हैं, इसलिए मुदल्लिस अन से रिवायत कर रहा है, ये हदीस नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हदीस जिसमें ये अब्दुल्ला बिन वहब अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे खबर दी है। ये किताब है मारिफतुस सहाबा ले अबी नुईम, अबू नुईम मुहद्दिस की किताब है मारिफतुस सहाबा। हदीस नंबर 4928,
हदसना अबू आमरिन हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना बिन वहाब अखबरनी अबू सईद। अब्दुल्ला बिन वहाब कहते हैं अखबरनी, मुझे खबर दी अबू सईद। अब यहाँ मालूम हुआ कि जो है वो अब्दुल्ला बिन वहाब कहते हैं अखबरनी अबू सईद, यहाँ समाअत की तसरीह मौजूद है और हदीस वही है, उस्मान बिन हुनैफ वाला वाक़या है और कोई हदीस नहीं। हदीस वही है कि उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं मेरे पास एक शख्स आया और उसने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के बारे में बात की कि मैं उनके पास जाता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, तो मैंने उसे ये वजीफ़ा बताया कि वज़ू करो, 2 रकात नफल पढ़ो और आप सल्लल्लाहु और ये दुआ पढ़ो। तो उसने ऐसा ही किया और उसका काम हो गया, मेरे पास आया। तो फिर उस वक्त मैंने उसे बताया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी एक शख्स को इसी तरह वजीफ़ा बताया था जिसकी आंखें मतलब बीनाई कमज़ोर हो चुकी थी, नाबीना था, तो मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया था। अब ये हदीस वही है, अब यहाँ समाअत की तसरीह मौजूद है। अब कहीं भी एक हदीस में अन है और दूसरी हदीस में समाअत की तसरीह मौजूद हो जाए तो हदीस सही होती है। तो इन्हीं के कानून के लिहाज से ये हदीस सही है। मारफतुस सहाबा li अबी नुइम हदीस में 4928 के इब्ने वहाब कहते हैं अखबरनी अबू सईद, मुझे खबर दिए अबू सईद। तो मालूम हुआ कि ये जो कहते हैं ना ये मुनक़ते है और अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस से अन से रिवायत करते हैं, समाअत की तसरीह मौजूद नहीं है। अब यहाँ दूसरी किताब में समाअत की तसरीह मौजूद है। जब समाअत की तसरीह मौजूद हो तो वह हदीस सही मानी जाती है, उस हदीस पर अमल होगा। तो मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला भी लिया और या मुहम्मद भी पुकारा। पूरी हदीस से देखें, या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ मुतवज्जह होता हूँ। तो साबित हो गया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद भी वसीला जायज़ है और सहाबा ने लिया है। और सही हदीस जो ढंढोरा पीट रहे थे कि अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, मुदल्लिस की अन से रिवायत काबिल कबूल नहीं है, वो उनका एतराज़ ख़त्म हो गया। बल्कि अब्दुल्ला बिन वहाब अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इसको कहते हैं समाअत की तसरीह का मौजूद होना। तो मालूम हुआ कि ये जहालत में भटके हुए हैं और किस तरह जहालत फैला रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो आपका वसीला नहीं लिया जाएगा, ये शिर्क है, नाजायज़ है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इनको तौबा करनी चाहिए और अपने मानने वालों को बताना चाहिए कि हमसे गलती हुई है और हमने गलत लोगों को गलत राह पर लगाया है। और हदीस सही है, अब्दुल्ला बिन वहाब जो समाअत की तसरीह मौजूद है और अखबरनी के अल्फाज मौजूद हैं, जिससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से आज भी दुआ की जा सकती है। और कोई भी मुसलमान परेशान हो, बीमार हो, आज भी यही दुआ करे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका काम हो जाएगा। और ये हदीस दोबारा आप सुन लें और पढ़ लें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है कि यूं दुआ करो, वज़ू करो, 2 नफल पढ़ो, उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मुहम्मद, सरकार का नाम सरकार को पुकारा जा रहा, तब शिरक भी नहीं हुआ, सारा कुछ खत्म हो गया हर चीज़। या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़ी लितुक़दा अल्लाहुम्मा शफ़ी फ़िय्या। तो उम्मीद है कि ये जो झूठ बोल रहे हैं और बार बार कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जब आप मौजूद थे उस वक्त वसीला जायज़ था, अब जायज़ नहीं है, तो इनके झूठ का जो पर्दा वो खुल गया। आपको मालूम हुआ कि ये है इनकी इल्मी सतह और ये है इनकी जहालत जो लोगों में फैला रहे हैं। और हदीस मौजूद है, समाअत की तसरीह भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने फिर मांगा भी और आपके वसीले से दुआएं भी की और काम भी हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।